ओके सो आज का नया टॉपिक हमारा रेस्पिरेशन होगा। वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने लास्ट वीक सबको कहा था, कुछ होमवर्क्स दिए थे मैंने, आई थिंक बोथ यस मैम। को एंड 8th स्टैंडर्ड को स्पेसिफिकली आपके नोट्स कंप्लीट करने को कहा था, अगर कुछ पेंडिंग है या कुछ। सो आई वुड लाइक कि जितने भी 8th के बच्चे हैं, सबसे पहले शो मी योर नोटबुक्स। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैक कैमरा ऑन करना है, आपके नोटबुक शो करने हैं। जो बच्चे नहीं कर सकते, अभी अवेलेबल नहीं है, सो क्लिक योर पिक्चर और वो पिक्चर आप व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर सकते हो। ओके बाकी जितने बच्चे करेंटली मुझे शो कर सकते हैं, प्लीज शो योर नोट्स सो दैट मुझे समझ में आए कि आप लोगों ने कुछ तो लिखा है, प्रोग्रेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। Okay, I'm giving 1-2 minutes to everyone. You can open your video and show your pages, notebooks. I can see Vedika's screen. Vedika, I can see your screen. Okay, Vedika, you can remove your finger. I'm not able to see your proper page. Rest of the students, please turn on your camera and show me your notebook so that मुझे समझ में आए कि आप लोग properly सब कर रहे हो, लिख रहे हो। 8th standard student सबसे पहले, उसके बाद 7th standard student दिखेंगे। You gave also that homework, no, for that animal one. Right. Do one thing, Khushi. Send me your answer in the chat box. Ma'am, I have written over there on my own, like I've made some of domestic animal only, like cat, fish, snakes, and frogs. Okay. So just wait for 5 minutes. Let me just check other students' notebook. Then I will come back to you. Okay, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes. Can you see my? Vedika, right? Yes. बच्चे मैं आपका देख पा रही हूँ, बट आपका जो स्क्रीन कैमरा है वो बार बार ऑफ हो रहा है. सो यस, आई कैन सी सम सेल डायग्राम. देन आई कैन सी अदिति इज आल्सो and also Shlok. I can see. Ma'am, now you can see. Yes, I can see that. Aditi, Shlok, Vedika. मैं इन 3 बच्चों के. What about other students? Ma'am, you seen, no? Yes, I have seen. Okay, I can see Khushi's also. Ma'am, finish. Ma'am, I'm actually of 7th standard. Yeah, I know. Yeah, ma'am. Okay, I can see. Yes, I can see 4 students till now has shown me. What about other students? Tell me your reason why you are not showing or not sending. Please, can you see? Aryan, yes. Aryan, I can see yours. Ma'am, can you see mine, Khushi? Yes, I can see yours. Yes, I can see your notebook. You are writing. Okay, everyone has prepared some diagrams, some tables, some definitions. I can see that. Yeah, ma'am. Ma'am, look that homework which you gave also. Okay. I'll come back to that. What about other students? Shivraj, Tahira, Bhavya, Kadambari. What about you? If you are not able to show me right now, send me the pictures of your notes so that I will understand कि आप लोगों ने लिखा है. Send me by today itself. Ma'am? Yes. Ma'am, shall I show you of that current lesson also one which we are doing right now? Yes, you can show me that also. Okay, ma'am. Bhavya, that's okay if you are not able to send right now. So you can send me the pics later. That is completely fine. Baki Yes, ma'am. जितनी Miss, भी have you Yes, Aryan. Miss, have you seen my?
Yes, yes, I have seen yours. I have seen yours. जो बच्चे अभी नहीं दिखा पा रहे, प्लीज सेंड योर पिक्चर्स टू मी आफ्टर द सेशन. आप लोगों का जितना भी सेशन हो जाएगा बाय टुडे इटसेल्फ, आई विल कीप द रिकॉर्ड. यस श्लोक. Ma'am, can I send the homework of 7th standard on WhatsApp? Yes, yes, you can. Everyone is allowed. You can send me the pictures on the WhatsApp. Ma'am, that current lesson one which we are doing, that's the one now. Okay. Just wait a minute. Manshu, I can see yours too. आपका भी दिख रहा है मुझे. Ma'am, can you see? Yes, I can see you have prepared the bones. Okay, the pictorial representation. Okay, I can see Kushi. I can see yours. Yeah, ma'am, this one also of plants. It is. Okay. So everyone understood tropical movement and other movement? Yeah, ma'am. Okay. Okay. So I have seen few students. बाकी student आपको आज ही भेजना है. अगर आप नहीं भेज पाए, then I'm going to take actions. I'm going to call your parents also. So you have to be updated. Okay. Now come back to 7th standard. जितने भी हैं, आप लोगों ने सारे tables बनाए सबने about animals Yeah, और ma'am. different movement, the limbs or maybe different organs from which they are able to move. Ma'am. Yes. Ma'am, I made like some few animals are there in common also. So, ma'am, I've made of some animal, like 4 animal I've taken and I made a table of that those. Okay. So, ma'am, will that be okay? Yes, yes, that completely fine. आप लोगों के पढ़ने की यही था बच्चा. आपकी जो भी आपको होमवर्क दिया है वो आपको देखकर पढ़कर then you have to send me so that वो confirmation हो जाएगा कि you have done that. अगर आप नहीं कर पा रहे हो then I have to take serious actions there. But बहुत छोटा सा होमवर्क था and I have given you one week, 7 days हम लोगों ने आपको टाइम दिया है. So I think that will be enough time कि आप लोग को complete कर पाओ. Okay, बाकी students after class don't forget to send me those. चलो, let's start with our new topic, respiration in organisms. After finishing up with this topic, हम लोग क्या करेंगे, proper revision and question practice शुरू कर देंगे. तो क्या होगा, आप लोगों का बहुत दिनों से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं लिया है, आपके प्रॉपर कोई क्विज या फिर कोई और भी सीरियस असाइनमेंट्स आपको नहीं दिए, क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं हुआ है, तो वो चीजें होंगी फिर. तो इससे क्या होगा, वापस से आपका जो भी इस टर्म के जितने भी सिलेबस थे वो चीजें रिकॉल हो जाएंगी. ओके, सो रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन द वर्ड रेस्पिरेशन. अभी ये वर्ड हम बहुत बार सुनते हैं बट वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स. जो रेस्पिरेशन है, बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं विद द वर्ड ब्रीदिंग. मैं आपको थोड़ी देर में डिफरेंस में बताऊंगी कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है. मेन जो रेस्पिरेशन है हमारे मीन्स जो आपको पढ़ना है, जो अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट. सो रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है रिलीज ऑफ एनर्जी. एनर्जी को रिलीज करवाना बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी हम, आप या और भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स अपने डे टू डे वर्क के लिए जो भी एनर्जी रिलीज करवा पाते हैं या प्रोड्यूस करवा पाते हैं, दैट इज द रेस्पिरेशन. और ये क्यों हो पाता है, ये रेस्पिरेशन तभी पॉसिबल है जब जो भी फूड आप कंज्यूम कर रहे हो उसका ब्रेकडाउन हो. सो इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ फूड. और ब्रेकडाउन ऑफ फूड का मीनिंग है नथिंग बट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, हमारा मेन एनर्जी सोर्स और मॉलिक्यूल, जिसके ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलेगा, कुछ कैलोरीज मिलेंगी, दैट इज नथिंग बट द ग्लूकोज अमाउंट. तो जितना ग्लूकोज आप कंज्यूम कर रहे हो वो सक्सेसफुली ब्रेकडाउन हो पा रहा है तो उतना ही आपको एनर्जी मिलेगा. अगर आप ग्लूकोज कंज्यूम भी कर रहे हो बट आपकी बॉडी प्रॉपरली उसका ब्रेकडाउन नहीं कर पा रही तो आपको कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी या उसका अमाउंट जो होगा कम होगा. सो कंप्लीटली ये इस पर्टिकुलर केमिकल मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है जिससे कि आपको एनर्जी मिलती है. यस Ma'am, in exam, like sometimes in school exam, this question also comes like this, like why do we all living things respire? So, ma'am, we can write over there that certain chemicals are required to break down the food. right. So, ma'am, will that answer be correct also? Like certain, like If the question certain. comes,
ओके, chemicals आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. are there. अगर क्वेश्चन ऐसा आता है व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिस्पायर, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो इसका मतलब वो पूछ रहे हैं कि क्यों ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेशन जरूरी है, क्यों वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं. अगर ये क्वेश्चन आता है तो आंसर विल बी दिस वन, जैसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, टू प्रोड्यूस एनर्जी. दैट विल बी योर आंसर. ठीक है, रेस्पिरेशन इसलिए हो रहा है, होल एंड सोल एक ही पर्पस है, एनर्जी प्रोड्यूस करवाना है. अगर एनर्जी होगा ही नहीं, प्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं होगी, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को रेस्पिरेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी. अब ये जो रेस्पिरेशन है, ये ओवरऑल पॉपुलेशन में जितने भी अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो दो टाइप के रेस्पिरेशंस उनमें अकर होता है. फर्स्ट वन इज एरोबिक, अनदर वन इज एनएरोबिक. अब इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है वो जान लो. एरोबिक का मीनिंग है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ग्लूकोज जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो कौन ब्रेकडाउन करवाएगा, ऑक्सीजन की मदद से कंप्लीटली ब्रेकडाउन होगा, और वो आपको बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा और कुछ एनर्जी देगा. तो यानी यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ. पहला चीज तो ये. तो यानी ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, इसीलिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. सेकेंड, एनारोबिक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यानी ये उस ऐसे टाइप का रेस्पिरेशन है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के एब्सेंस में, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है, तब भी वो ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन. I will explain this. Kushi, wait a minute. Just let me finish this up, then I'll come back to you. So ये जो हो रहा है, Out of that box, out of the box, I have actually. Okay, just wait for a moment. Let me just finish with those concepts and I'll come back to you. So glucose without oxygen, यानी ऑक्सीजन आपके पास अवेलेबल नहीं है और सर्टेन ऑर्गेनिजम्स के पास अवेलेबल नहीं है, फिर भी वो एनर्जी प्रोड्यूस करवाने की कोशिश करता है. अगर ऐसा होता है तो दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दो चांसेस होते हैं. पहला चांस ये है कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने पे आपको अल्कोहल मिले. नेम ऑफ द अल्कोहल इज इथाइल अल्कोहल. अल्कोहल विल बी द बाय प्रोडक्ट, देन कुछ कार्बन डाइऑक्साइड एंड थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगा आपको. तो रेस्पिरेशन ये भी हुआ, बट विदाउट ऑक्सीजन हुआ. और एक ऐसा मेथड भी है जिसमें सेम कंडीशन होने के बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन अगर हो रहा है, तो उसकी वजह से जो आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी लैक्टिक एसिड और थोड़ी बहुत एनर्जी. सो आपके सामने ये दो कंडीशंस हैं. ये दो कंडीशन वाले यानी दो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, मींस दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. तो एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, सो वी आर एरोबिक, एंड जो ऑर्गेनिजम्स विदाउट ऑक्सीजन भी एनर्जी प्रोड्यूस करवाने में मैनेज कर पा रहे हैं, सक्सेसफुली कंडक्ट करवा रहे हैं, दे आर एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स. बट हमारी बॉडी में भी एक ऐसा टिश्यू है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, दैट इज आवर मसल्स. आप सबने नोटिस किया है जब आप बहुत ही विगरस एक्सरसाइज करते हो, बहुत तेज भागते हो, दौड़ते हो, We get so sprain in our legs, so right, there also this happens. right. So why it is happening? Because of the anaerobic respiration. क्या हो गया, आपके पास जो ऑलरेडी ऑक्सीजन था ना वो खत्म हो गया, बट स्टिल आप नहीं रुक रहे, आप काम करते जा रहे हो. सो द विदाउट ऑक्सीजन जितना भी ग्लूकोज होगा वो मैनेज करेगा एनर्जी प्रोड्यूस करवाने के लिए. सो इट प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड इन योर मसल्स. वो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद आप पूरा थक जाते हो, फिर आप कोई भी काम नहीं कर पाते, आपको शिवरिंग स्टार्ट होगी और इंटेंस पेन स्टार्ट हो जाएगा, क्रैम्प्स आने लगेंगे इन योर हैंड मसल्स, लेग मसल्स, नेक मसल्स, बैक मसल्स, व्हाटएवर मसल यू आर यूजिंग फॉर द वर्क. सो हमारे पास भी, हमारी बॉडी में भी इन एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, बट ये ऑप्शनल है, ये थोड़ी देर के लिए होता है, मे बी फ्यू मिनट्स के लिए होगा, ये हमेशा नहीं होगा. अदरवाइज आपकी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल एरोबिक रेस्पिरेशन ही मींस प्रेफर करते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. ओके खुशी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. Ma'am, like if a person is having an asthma, so does that person's respiratory system, like respiration, is also affected? Actually asthma, yes, asthma is a disease of respiratory system. तो अगर respiratory system में जो आपका wind pipe है, bronchi है, trachea है,
वो ही इन्फेक्टेड रहता है हमेशा। बहुत जल्दी एलर्जी की वजह से म्यूकस प्रोड्यूस होने लगता है। तो सपोज इमेजिन करो आपके पास एक पाइप है, उसमें से वाटर या एयर फ्लो हो रहा है और वो ब्लॉक होने लग जाए बीच बीच में, तो क्या होगा, जो प्रेशर है, जो फ्लो है, वो इंटरप्ट होगा। सेम वो पेशेंट को भी होता है, उनका विंड पाइप हमेशा ब्लॉक होता है क्योंकि वो इतने ज्यादा एलर्जिक होते हैं कि म्यूकस बहुत ज्यादा जमा होने लगता है। उसकी वजह से सीवियर कफिंग होती है, उनको सांस नहीं लिया जाता, चोकिंग होने लगता है। सो दीज आर अस्थमा, उसी को अस्थमा अटैक बोलते हैं। तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, उसकी वजह से उनका इनहेलेशन एक्सेलेशन कैपेसिटी डिक्रीज हो जाता है, तो उनकी बॉडी में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। तो यस, वो बाकियों के मुकाबले उस अटैक के टाइम पे कम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, बट नॉट ऑलवेज। व्हेन दे आर ओके, व्हेन दे आर नॉर्मल, उनके आसपास कोई एलर्जेंस या कोई पार्टिकल्स नहीं है जो उनको एलर्जी प्रोवाइड करें या जिसकी वजह से उन्हें एलर्जी हो, तो वो नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं, उनकी बॉडी में नॉर्मल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगा। Ma'am, like mostly what is that allergen? Allergens are some particles, maybe chemicals, or some other small molecules या फिर organisms जिनकी हमारी बॉडी में एंटर Like करने की वजह pollens? से रिएक्शन शुरू हो जाए, जैसे पोलन ग्रेन्स, राइट, पॉल्यूटेंट्स जैसे पॉल्यूशन वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो धुआं होता है गाड़ी का, व्हीकल का, स्मोक। ओके, सो दीज आर द स्मॉल पार्टिकल्स जो कि हेवी मींस टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में आके रिएक्शंस करते हैं। सो मेनी पीपल आर सीवियरली एलर्जिक टू देम। हमें भी एलर्जी होती है उससे, बट बहुत स्मॉल लेवल पे होती है, ओनली फॉर दैट Ma'am, पर्टिकुलर not मोमेंट। like big level or like नो, asthmatic level. नो, यस। सो जो मेन पेशेंट्स हैं उनके पास क्या होगा कि वो अगर थोड़ा सा भी उनको डस्ट पार्टिकल, पोलन ग्रेन्स या बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ टॉक्सिन भी उन एक्सपोज हो गए, तो उनको सीवियर रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो अगर रिएक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादा ब्लॉक हो रहा है, मीन्स वो पर्सन जो है वो अस्थमैटिक है। Okay, everyone understood these two concepts, aerobic and anaerobic respiration? Respiration word समझ में आया? Yes, ma'am. Any doubt to anyone? No. No. Okay, if no doubt, then let me give you some examples कि aerobic anaerobic respiration किस में होता है. So basically aerobic respiration, it occurs in maximum, जितने भी majority of the plants and animals exist करते हैं, and maybe some unicellular organisms also, bacteria, protista, some fungi, in some में majority aerobic respiration ही होगा। anaerobic किन किन में होगा? कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें ज्यादातर एनारोबिक ऑप्ट करते हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया का एग्जांपल दे दूं तो मिथेनोजेंस, जो मीथेन प्रोड्यूस करेंगे, दे आर नोन एज मिथेनोजेंस। ये एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन से ही अपना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कुछ फंगस में यीस्ट जो है, यूनिसेलुलर फंगस, जिससे कि बेकिंग जो ब्रेड बनता है वो उनके एनारोबिक रेस्पिरेशन से होता है। सो वो अल्कोहल प्लस CO2 प्रोड्यूस करते हैं, और उस CO2 की वजह से जो डो है ना, जो मेन जो ब्रेड होता है, वो फ्लफी हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, एंड ऑल्सो इथाइल अल्कोहल। तो अल्कोहल जो होता है वो फर्मेंटेशन क्रिएट करता है। तो यीस्ट हो गया। देन और अगर कुछ एग्जांपल्स ले लूं तो हमारे मसल सेल्स, समटाइम्स हमारे मसल सेल्स के पास ही एक ऐसी खासियत है कि जरूरत के टाइम पे वो एनारोबिक में स्विच हो सकते हैं फॉर फ्यू मिनट्स, बट नॉट ऑलवेज। अदरवाइज अगर इनफ ऑक्सीजन है, एवरीथिंग विल बी अंडर एरोबिक रेस्पिरेशन ओनली। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अभी रेस्पिरेशन आप लोग हमेशा याद रखना, इट इज नॉट ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज डिफरेंट, अभी मैं थोड़ी देर में ब्रीदिंग भी आपको बताऊंगी। रेस्पिरेशन इज डिफरेंट, इसका सीधा सीधा मीनिंग है एनर्जी रिलीज करवाना। यस Man, like in breathing, we could say like we inhale and exhale only, राइट। and like we inhale, exhale, and we just do that gases exchange. But in respiration, that food is broken, that glucose is broken down राइट, with that ग्लूकोज help of मीन जो gases. आपका डाइजेशन है, सी आपकी बॉडी के जितने भी इंडिविजुअल
ऑर्गन सिस्टम है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आपकी बॉडी में एनर्जी तभी रिलीज होगी जब आप खाना खाओगे, यानी आपको ग्लूकोज मिलेगा। और ग्लूकोज जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो बाहर जो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हो, आप इधर प्लांट या एनिमल खाओगे, उन दोनों में से कोई भी सिंपल ग्लूकोज नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम है कि वो क्या कर रहे हैं, उनका ब्रेक डाउन करवाता है, ग्लूकोज आपको तैयार करके देता है। वी हैव स्टडीड, क्लियरली स्टडीड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। वो ग्लूकोज जब हमारे ब्लड में जाता है तो वो ब्लड यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आपने इससे पहले सर्कुलेशन में देखा, ईच एंड एवरी टिश्यू तक डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है ग्लूकोज। जब वो सेल के अंदर जाएगा तब हमारे सेल में कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो उस आए हुए ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक करेंगे। तो सिर्फ ग्लूकोज से काम नहीं चलता, वो ग्लूकोज और छोटे लेवल पे, मॉलिक्यूलर मींस एटॉमिक लेवल पे ब्रेक होता है। जैसे जैसे ब्रेक होता जाएगा उसकी एनर्जी रिलीज होती जाएगी। वही एनर्जी कलेक्टिवली मींस वही जो भी फॉर्म बॉन्ड्स हैं कलेक्टिवली एनर्जी कहलाते हैं, जिसको आप यूज करोगे। इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, इस एनर्जी को हम एटीपी बोलते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म दे देती हूं मैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बिकॉज हम एरोबिक एनारोबिक का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये जो एनर्जी है इसका मीनिंग एटीपी हुआ। हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, इसीलिए बता दूं, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है सो द अमाउंट ऑफ एटीपी आपको मिलता है दैट इज 38 एटीपी। दिस इज द मैक्सिमम नंबर जो आपको मिलेगा वाया दिस एरोबिक मेथड। और जब आप एनएरोबिक कर रहे हो सो अमाउंट ऑफ एटीपी विल बी 2 एटीपी ओनली। सो कितना कम हो गया। तो अब ये बात समझ सकते हो कि क्यों ऑक्सीजन जरूरी है। यानी ये ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीजन ब्रेकडाउन हो गया, जिस स्मॉलेस्ट लेवल तक वो जा सकता था वहां तक लेकर गए, क्योंकि ऑक्सीजन था हमारे पास। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ही होगा, यानी बीच में ही कहीं रुक जाएगा काम, और बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हो रहा है। दिस इज द कंपैरिजन। इसलिए एक और चीज ध्यान देना इन द एग्जाम्पल्स में यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यानी एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स जिनके पास प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है या थोड़े एडवांस हैं, इंटेलिजेंट है, उनके पास बहुत सारे सेंसरी पार्ट्स प्रेजेंट हैं। एरोबिक में, एनएरोबिक में मोस्टली आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही दिखेंगे जो कि ये टाइप का मेथड, ये टाइप का रेस्पिरेशन कंडक्ट करवाएंगे। दिस इज द मेजर डिफरेंस। ये ह्यूज डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब और क्या, दूसरी बात और क्या समझे, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे, जो बहुत पहले, सबसे पहले कौन बना है, बैक्टीरिया आया है, ये याद रखना हमेशा। अर्थ पे सबसे पहले जो आया है दैट इज बैक्टीरिया एज अ प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया यानी स्टार्टिंग में पहले एनेरोबिक था, बाद में एरोबिक पे स्विच हुआ है। इसीलिए एडवांस्ड और हायर ऑर्डर के ऑर्गेनिजम्स एरोबिक करते हैं। बट पहले जब इतना इवोल्यूशनरी एडवांटेज नहीं था, स्मॉलर लेवल पे ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे, तब उनके पास ऑप्शन में एनेरोबिक ही था। दिस इज द कंक्लूजन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इतनी बात समझ में आई सबको? एनी डाउट्स? No, ma'am. ओके, एवरीवन हैज रिटन, सबने लिख लिया है? Ma'am. Okay, shall I change now? Ma'am, 2 Ma'am. minutes. Okay, I'm waiting. Ma'am, you can change. Okay, everyone has written? Yes, ma'am. Okay. Now, अभी ये रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन था, आपको बेसिक समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन क्या हो रहा है। तो अब आपको भी पता है कि रेस्पिरेशन अगर है तो हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ह्यूमन के बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। एरोबिक होता है, ये बात आपको पता चल गई है। सिचुएशन के हिसाब से एनारोबिक में कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ कुछ सेल्स लाइक मसल सेल्स, वो भी आपको पता चल गया। बट इन जनरल कौन कौन पार्टिसिपेट कर पा रहा है इस रेस्पिरेशन को करवाने में? बेसिकली ह्यूमन में 3 स्टेप में रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। 3 चीजें हैं। पहला चीज होगा ब्रीदिंग। सबसे पहले ब्रीदिंग इसलिए जरूरी है ताकि आप रिक्वायर्ड एयर को इनटेक कर सको। आपकी बॉडी के अंदर पहले एयर को लाना जरूरी है।
तो पहले होगा ब्रीदिंग. ब्रीदिंग में 2 पार्ट्स हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेलेशन मीन्स एयर का इनटेक, आप जो इनहेल करते हो दैट इज एयर इनटेक. एक्सहेलेशन मीन्स जो आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो, वेस्ट एयर रिलीज करते हो, दैट इज एक्सहेलेशन. तो इनहेलेशन इनटेक हो गया, एक्सहेलेशन मीन्स टेक आउट, जो बाहर हम एग्जिट करवा रहे हैं, जो भी हमारे पास वेस्ट एयर प्रेजेंट है वो, और मोस्टली वो वेस्ट एयर कार्बन डाइऑक्साइड है. गैसेस के नाम के ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले स्टेप समझ लो. तो पहला है ब्रीदिंग. तो रेस्पिरेशन करवाने के लिए फिर से समझ लेना, क्योंकि एरोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इस ऑक्सीजन को पाने के लिए ब्रीदिंग की जरूरत हो रही है. सो रेस्पिरेशन को फुलफिल करवाने का एक स्टेप है ब्रीदिंग. सेकेंड है ट्रांसपोर्टेशन. एग्जैक्टली क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. मोस्टली वो गैसेस कौन है? अगर आप इनहेल करोगे तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, और अगर आप एक्सहेल करोगे तो CO2 को बाहर निकालना है. क्योंकि फिर से अब रिएक्शन ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या बताया, हमेशा कोई भी टाइप का रेस्पिरेशन हो, वेस्ट आपको क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा एज अ बाय प्रोडक्ट, या एंड प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है CO2 मिल रहा है. तो अगर एंड प्रोडक्ट या वेस्ट गैसेस CO2 है, मतलब वो आपके लिए टॉक्सिक है तभी. तो अगर वो टॉक्सिक है तो उसका बॉडी से निकलना, एक्सक्रीट आउट होना जरूरी है. सो वो चीज एक्सक्रीट आउट हो रही है, इसीलिए एक्सहेलेशन के टाइम पे CO2 हमेशा एक्सहेल आउट होता है या एग्जिट होता है फ्रॉम द बॉडी. तो इनको ट्रांसपोर्ट करवाने में कौन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? नथिंग बट द ब्लड. इसीलिए तो सर्कुलेशन हमने पढ़ा था. और ब्रीदिंग के अब लास्ट हमारा जो आ गया मेन पार्ट, दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी जो ग्लूकोज, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किसका है? डाइजेस्टिव सिस्टम का. तो जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके ब्लड में आया था, वो अब इंडिविजुअल सेल तक पहुंच गया. तो अब आपके पास क्या है? डायग्रामेटिकली अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, इमेजिन दीज आर द सेल्स. ये क्लस्टर ऑफ सेल्स है, किसी भी ऑर्गन के कोई भी टिश्यूज कंसिडर कर लो. और यहाँ पे क्या कनेक्शन है? किस चीज का कनेक्शन होगा? तो 2 इंपॉर्टेंट वेसल्स, ब्लड वेसल्स, दैट इज आर्टरीज एंड वेन्स. अब ये जो आर्टरीज एंड वेन्स हैं ये कनेक्टेड हैं. तो जो ग्लूकोज आ रहा है वो इस साइड से आ रहा है, दिस इज द डायरेक्शन, ये आर्टरीज में प्रेजेंट है. जहां भी कनेक्टिंग लिंक हो गया, दिस पोर्शन इज नोन एज कैपिलरीज. जहां पे भी एक्सचेंज करना होगा, गिव एंड टेक मेथड्स होंगे, उसको बोलेंगे कैपिलरीज. और जो ये लास्ट पार्ट है जो वेस्ट लेकर जाएगा, दैट विल बी वेन. तो अब आर्टरी से चीज शुरुआत हुई, ग्लूकोज आया, दिस इज द कैपिलरी. कैपिलरी छन्नी का भी काम करता है. तो यहाँ पे क्या होगा? सारी चीजें गिव एंड टेक हो जाएंगी, रिक्वायर्ड अमाउंट. अनवांटेड चीजों का कोई लेन देन नहीं होगा, जो वांटेड है वही चीजें. तो क्या किया? ग्लूकोज को दिया. साथ ही साथ ये सेम नेटवर्क कहाँ पे प्रेजेंट था? लंग्स पे प्रेजेंट था. तो ऑक्सीजन को भी दिया. तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन दोनों सेल के पास आ गए. अब सेल के अंदर क्या हो रहा है? अगेन सेल के अंदर होगा सेलुलर रेस्पिरेशन में, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के इस्तेमाल से किस में कन्वर्ट हो गया? CO2 में. थोड़ा सा वाटर मिला, प्लस आपको ATP मिला. ये चीजें हो रही हैं सेल के अंदर. तो ये जो रिएक्शन होता है ना, इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. अब जब ये वेस्ट है, तो ये वेस्ट को वापस से हमें भेजना है. हमेशा सेल अपने पास जमा करके नहीं रख सकता. तो उस वेस्ट को भेजने के लिए इसीलिए पैरेलली वेन की जरूरत है. तो आर्टरीज एंड वेन्स साथ हैंड इन हैंड चलते हैं. और जहां भी एक्सचेंज हो रहा है वहां पे कैपिलरी प्रेजेंट है. इट इज अ नेटवर्क बिटवीन आर्टरी एंड वेन. आर्टरी और वेन्स के बीच का नेटवर्क. क्यों? क्योंकि आपको ये चीज बताई हुई है, हमारी बॉडी में क्या है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. कहीं भी ब्रेकडाउन नहीं होता, कोई वेसल ओपन नहीं होता. यस Ma'am, like, is there any organism where this where anaerobic and aerobic both are there? So, ma'am, what do we call that organism? And is there any example of it? ओके. अगर यस वी हैव एग्जांपल्स, वी हैव मेनी एग्जांपल्स. अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स बाय डिफॉल्ट मींस वैसे तो वो एरोबिक हैं, बट कभी कभी वो एनेरोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं सिचुएशन के हिसाब से. तो उनको बोलते हैं फैकल्टेटिव
एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। ऐसे मीन्स जो ऑप्शन में कभी कभी एनारोबिक करते हैं, तो फैकल्टेटिव मीन्स जब रिक्वायर्ड है तभी एनारोबिक कर रहा है, यूजुअली वो ऑर्गेनिजम्स एरोबिक करता है। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। बैक्टीरिया में एक कैटेगरी होती है आर्की बैक्टीरिया, जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में, जैसे हॉट स्प्रिंग्स में, कोल्ड मींस पोलर रीजन में, बहुत ही आइस कोल्ड जहाँ पे एनवायरनमेंट है, जहाँ पे माइनस में जा रहा है, ऐसे एनवायरनमेंट में भी कुछ ऑर्गेनिजम्स सस्टेन करते हैं। तो वो आर्की बैक्टीरियाज की कैटेगरी होती है जिनमें की फैकल्टेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स है, यानी नॉर्मली ऑक्सीजन मिला तो एरोबिक कर लेंगे, बट अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है उनको तो उनको सर्वाइवल के लिए स्विच होना पड़ता है, तो वो एनारोबिक में भी स्विच हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोबिक। वैसे ही एक और कंडीशन हो गई, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जो नेचुरली एनारोबिक है, किसी आर्की बैक्टीरिया में ही नेचुरली एनारोबिक है, बट अगर रिक्वायरमेंट हुआ, सिचुएशन चेंज हुआ, सपोज ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है हर जगह, तो उनको भी आसान तरीका चाहिए ना, तो वो क्या करते हैं, थोड़े देर के लिए अपने आप को एरोबिक में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव एरोबिक। सो ये दोनों नाम जाने जाते हैं जो लोग अपना काम स्विच करते हो, मोड ऑफ रेस्पिरेशन। अंडरस्टूड? ये दोनों वर्ड्स आप पढ़ोगे, ये दोनों टाइप्स आप पढ़ोगे इन 9th स्टैंडर्ड। हमारा एक टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड में डाइवर्सिटी, ओके मैम। जिसमें टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑल द किंगडम्स, यूनिसेलुलर से लेके एंड तक, मैमल्स यानी हम तक, हमें ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिटेल पढ़ना है। दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, हर एक ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या क्या कैटेगरीज एंड टाइप्स हैं। दैट टाइम यू हैव टू स्टडी इन डिटेल। अभी आपको रेस्पिरेशन एज अ कॉन्सेप्ट समझना है। ये कॉन्सेप्ट फिर हम अप्लाई करेंगे 1 by 1 टू ऑल ऑर्गेनिजम्स इन नेक्स्ट ईयर। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? मैकेनिज्म सबको समझ में आया? मींस रेस्पिरेशन में क्या क्या 3 स्टेप है, ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. मीनिंग ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एवरीवन अंडरस्टूड? Yes. ओके, अब मेरे पास एक एवरीवन डू वन थिंग, ये सबने लिख लिया है? अगर नहीं लिखा है, आई एम गिविंग यू 1-2 minutes, प्लीज राइट डाउन। Yes. Any Ma'am, means questions? like simply we could all say that breathing is also a part of respiration. Right. Like Breathing is one of the vestibular. initial steps, one of the important Yeah, first ma'am. step of respiration. Okay. Has everyone written? Then tell me, Yeah, ma'am. if it is done, then जिन लोगों का हो गया है, everyone please switch to another link. जो सेकेंड लिंक भेजा है उस पे Okay, ज्वाइन करना शुरू कर दो. There I will explain further more. I have one picture to show sure, you. ma'am. Yes, ma'am. Okay. If it is done, then I'm going to stop this session. Then सब लोग दूसरे लिंक पे ज्वाइन कर लो.